So good morning students. So this is the last lecture of the topic laws of motion. Okay, last topic of laws of motion, and the topic name is tension. The topic name is tension. So first of all, just what you consider, there is a sport, it's a rigid sport. Okay, and a rope is tied to it. It's a rope, and a weight is tied to a rope. So what is this weight? mg. A body of mass m is tied to a rope, mass m, sorry, you can write here as mass m. Okay, this is a rigid sport, like it can be a branch of a tree, it can be a branch of tree like this rigid sport can be a branch of a tree. So it can be like this, or it can be a rod of your suppose hanging in your room, and you have tied the string and then the body. A body of mass m is tied to a rope, which is held by a rigid sport. rigid sport कोई सख्त sport है like this. So body of mass m, it is tied to a rope which is held by a rigid sport. So how you can consult like this? Suppose you know the rope will have so many molecules. This rope is made of, it's a metal, it will have so many molecules. Suppose this is molecule number 1 of rope, this is molecule number 2 of rope, molecule number 3 of rope, molecule number 4 of rope, and this last molecule, it is tied to a body of mass m, and weight is acting mg in the downward direction. You know that. As you know that the body of mass m, it is tied to a rope, but body is not moving in the downward direction. The body is not moving in the downward direction. That means a equal and opposite force is acting on the body in the upward direction. Some reaction force is acting on it. You know that, we have already discussed that. That means some reaction force is acting on it. So what is this reaction force called? So we will study this. What is this reaction force? So suppose, first of all, a rope is made of so many molecules. You can write like this: the rope made of, this is extra concept, made of so many molecules. And you know that we have studied in solids, these molecules have strong intermolecular forces of attraction. These molecules, molecules have strong intermolecular forces of attraction between them. They have strong forces of attraction between them. Have strong intermolecular forces of attraction in between them. Okay. So that means 3 and 4 are having intermolecular forces of attraction. So I'm rubbing this concept. So 3 and 4, they are having the strong intermolecular forces of attraction. Okay, like this. This is 3 force and this is 4. And mg is pulling the 4th molecule in downward direction. Okay. So what will happen? You know that is mg is pulling the 4th molecule in the downward direction. So the gap of this 3rd molecule and 4th molecule increases like this.
this is mg. So space between this third and fourth molecule increases. Okay, earlier they are having the strong intermolecular forces of attraction. Okay, so what will happen, this third and this third molecule, what will happen, it will pull the fourth molecule, pull the third molecule will pull the fourth molecule in upward direction so that it return to its normal position. भी थर्ड फोर्थ को खींचेगा ताकि वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, ये नहीं चाहता फोर्थ ऐसे चला गया नीचे, पर इनके बीच में फोर्स है जो इनको बिल्कुल इकट्ठा लाने की कोशिश करेगी. एज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, सो थर्ड विल पुल द फोर्थ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्थ को पुल किया जाएगा थर्ड के द्वारा इन द अपवर्ड डायरेक्शन so that it comes to its normal position again. Okay, so we can write that mg weight is pulling, this is first point, this is second point, okay, and this is third point, this is third. So mg weight is pulling the fourth molecule in downward direction. Okay, so as a result क्या हो जाएगा, space will be created in between the two molecules. As a result a space is created in between the two molecules. अब स्पेस हो गया ना दोनों के बीच में, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी जिसने इकट्ठा करे, तो वही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फिर फोर्स को कहाँ ऊपर लाने की कहाँ कोशिश कर, देखिए पहले इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी तभी तो इकट्ठे थे, पर अब इनके बीच में गैप आ गया है, क्यों, वेट ने एक्ट किया नीचे को. अब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो थर्ड ने फोर्थ को फिर ऊपर पुल करने की कोशिश करनी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों फिर अपनी जगह पे इकट्ठा आने की कोशिश करेंगे. सो इन बिटवीन दी टू मॉलिक्यूल्स, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग intermolecular forces of attraction. Between them, attraction force है उनके बीच में. So third molecule pull करेगा fourth molecule को, will pull the fourth molecule in upward direction. क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाए, इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इट रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. ठीक है, सो अब सिर्फ फोर्थ वाला कंसेप्ट बनाओ, दिस इज फोर्थ, मान लो fourth is being pulled by the mg in the downward direction like this, and it is pulled by the third in the upward direction. Okay, third is pulling with the same force. Same force means fourth with the same force. Same force का मतलब ये है भी अगर फोर्थ नीचे को mg से पुल हो रहा था तो थर्ड भी उसको ऊपर कितने से पुल करेगा, mg से ही पुल करेगा with the same force. Okay, so this kind of force, this upward force that is applied by every molecule. So ये क्या है, तो सारे molecules में स्पेस क्रिएट हो जाएगी जब mg हम लगाएंगे ना, ऐसे थर्ड और फोर्थ में भी स्पेस हो जाएगी, सेकंड और थर्ड में भी हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड में भी हो जाएगी. सो थर्ड फोर्थ को ऊपर पिक करेगा, सेकंड थ्री को ऊपर पिक करेगा, फर्स्ट सेकंड को ऊपर करेगा, एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो रही है. वही अपवर्ड फोर्स क्या है, वो एक रिएक्शन फोर्स है जो इस वेट को मिल रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है,
ये क्या है, ये अपवर्ड फोर्स जो सारे मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग में, ठीक है, दिस फोर्स इज नोन एज टेंशन, और इसी की वजह से वो वेट नीचे नहीं आ रहा। हमने यही बात की थी भी वेट नीचे क्यों नहीं आ रहा, कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स लग रही है। वो अपवर्ड फोर्स कौन लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग दे आर अप्लाइंग अ अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी एंड दिस फोर्स इज नोन एज टेंशन। इसे कहते हैं टेंशन, खिंचाव आ जाना। सो एवरी मॉलिक्यूल, तो अभी कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। सो एवरी मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहा है, देखो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में स्पेस आ जाएगी, थर्ड फिर थोड़ी स्पेस आ जाएगी वेट की वजह से, फोर्थ के साथ वेट अटैच था। सो ये इसको ऊपर पुल कर रहा है, ये उसको ऊपर पुल कर रहा है, ये उसको, क्योंकि वो स्पेसेस को नॉर्मल करना चाहता है, क्योंकि स्पेसेस आ गई है। तो दिस अपवर्ड फोर्स इन दी स्ट्रिंग इट्स नोन एज टेंशन। सो दिस इज अ रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द molecules of string, and this is known as tension, and its value will also be equals to mg. So the definition of tension is upward force applied by molecules of string this is the upward force applied by the molecules of string, and this is balancing, तो वो फोर्स क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, बैलेंसिंग दी वेट अटैच टू स्ट्रिंग। दिस इज टेंशन, इसी को तो कहते हैं टेंशन। टेंशन इज दी अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स है जो अप्लाई की किसके द्वारा, मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग, एंड दिस इज बैलेंसिंग द वेट अटैच टू स्ट्रिंग, बिल्कुल बैलेंस कर रही है। इसलिए तो इसी टेंशन की वजह से वेट ना तो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि mg नीचे को काम कर रही है, mg ऊपर, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंशन। टेंशन इसे कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्स what is the direction of tension, you can't say it is in the upward direction, you can't say like that, why, अभी बताता हूँ आपको। लगता तो यही है भाई टेंशन की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। सी दिस सेकंड कंसेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बताइएगा टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है। सो दिस इज रिगिड स्पोर्ट एंड अ रोप इज टाइड टू दिस रिगिड स्पोर्ट एंड वेट इज टाइड टू अ rope, and weight is acting in the mg, and I have told you this rope is made of so many molecules like this. So molecule number 1, molecule number 2, suppose molecule number 3, there are so many, I have made only 4. This is weight acting in the mg. Okay, now note down this concept, very important concept. This will give us the direction of tension. We know that 3 and 4, this is 3, this is 4, 3 and 4, they have strong intermolecular forces of attraction which bind them together. Okay, 4 is pulling 3, 4 को पुल कौन कर रहा है, mg, ये 4 है मान लो, ये कौन है, mg। 4 को कौन पुल कर रहा है, mg किसको पुल कर रहा है, 4, ये 4 है, ये mg है। 4 मतलब 4 को पुल किया जा रहा है नीचे को, किसके द्वारा, mg। मतलब 4 पे फोर्स नीचे को कितनी लग रही है, मतलब कितनी लग रही है, mg। ओके, वी नो दैट 3 and 4 दे आर अटैच टू ईच अदर। अगर 4 नीचे को mg से जा रहा है तो क्या 3 नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों अटैच है। तो 3 पे भी कितनी लग रही है नीचे को, थर्ड पे भी नीचे को कितनी एक्ट हो रही है, mg। बॉडी से mg कहाँ ट्रांसफर हो गया, बॉडी का वेट क्या था, mg। सो mg किसके पास ट्रांसफर हो गया, फोर्थ मॉलिक्यूल, फिर किसके पास ट्रांसफर हो गया, थर्ड के पास। अब थर्ड ये है, सेकंड ये है, थर्ड और सेकंड दोनों अटैच है एक दूसरे के साथ, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर थर्ड mg से पुल हो रहा है तो सेकंड भी किससे पुल हो रहा है, mg से। तो अब यही mg किसको ट्रांसफर हो गया, सेकंड को ट्रांसफर हो गया, ऐसे करके, ठीक है। फिर यही mg किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इससे, इसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है।
सो ये देखो, मतलब इस एंड पे यहाँ पे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसको पुल किया जा रहा है किधर, mg की तरफ। हमने ये स्टडी किया, ठीक है। दिस इज वेट, ओके। सो दिस, ये बात लिख लो भी, mg इज बीइंग ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रिंग। पहले ये लिखो, mg इज बीइंग ट्रांसफर्ड to each and every molecule of string। एक तो ये बात नोट डाउन करो, अभी ये है हमारा ये कंसेप्ट जो कर रहे हैं, mg ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या कहा भी, थर्ड और ये फोर्थ था, सपोज ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ओके। फोर्थ नीचे को पुल हो रहा है mg से, ठीक। फोर्थ पॉइंट को ले लो, ए पॉइंट है, इसको मैं लेता हूं ए पॉइंट, मतलब ए पॉइंट नीचे को पुल हो रहा है mg से, ऐसे ले लो, ठीक है। अब ये फोर्थ नीचे को कहाँ हो रहा है पुल, हमने कहा इन दोनों में स्पेस बढ़ गई, स्पेस बढ़ गई, तो ये अपने स्पेसेस को फिर करेंगे नॉर्मल। इसका मतलब थर्ड फोर्थ को कहाँ पुल करेगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर। कितने वेट, कितने फोर्स से, mg से। यही तो टेंशन हम पढ़ के आए, ठीक है। मतलब ए पॉइंट को एक ऊपर भी पुल हो रहा है, कितना, mg। हमने पढ़ा भी टेंशन क्या है, mg होती है, ये भी टेंशन होगी, ये क्या होगी, mg। तो अगर हम फोर्थ को एक पॉइंट माने, स्ट्रिंग का एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट माना है, तो हर पॉइंट पे टेंशन नीचे को भी लग रही है, टेंशन ऊपर को भी लग रही है। तो टेंशन की डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होती है एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। नीचे को भी होती है, ऊपर। नीचे क्यों हो रही है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में वेट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए नीचे होगी। फोर्थ को ए पॉइंट मान लो नीचे है। अब जब नीचे ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, फोर्थ और थर्ड अटैच है, फोर्थ को नीचे खींचा जाए mg से, दोनों में स्पेस क्रिएट होगी। तो अब थर्ड क्या करेगा, स्पेस को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, फिर वो इकट्ठा आएंगे। एक फोर्स ऊपर को लग रही है, अब ये एक नीचे को लगी, तो व्हाट इज दिस, ए पॉइंट पे एक टेंशन नीचे को लग रही है, एक टेंशन ऊपर को लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी। इसलिए स्ट्रिंग का जो ए पॉइंट होता है वो अपनी जगह पे रहता है जब वेट उसके साथ अटैच होता है, ना तो वो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, क्योंकि नेट फोर्स हर पॉइंट पे जीरो होती है। वैसे तो टेंशन की डायरेक्शन ये है, दिस इज टेंशन, ओके। पर अगर हम यहाँ पे बिल्कुल रूफ के बिल्कुल यहाँ नज़दीक देखेंगे, रिगिड स्पोर्ट के बिल्कुल नज़दीक देखेंगे, तो mg नीचे को काम कर रहा है, ये देखो, क्योंकि फर्स्ट वाला पुल कर रहा है सेकंड मॉलिक्यूल पहले को किससे पुल कर रहा है, mg से। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे जो यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसको पुल किया जा रहा है किससे, mg से। सो कंसेप्ट ये है भी, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होती है, ऊपर को भी एक फोर्स mg लग दिया, एक नीचे को भी। तो नेट फोर्स हर पॉइंट पे जीरो होती है, इसलिए हर पॉइंट वहीं पे रहता है, ना वो ऊपर जाता है ना नीचे। हाँ, अगर कोई बाहर से कहे टेंशन क्या है, तो टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। टेंशन क्या है, वो जो स्पेसेस बढ़ रही थी उसको नॉर्मल करने की कोशिश है, ये टेंशन है, ठीक है, ये टेंशन है। ये क्या है, ये वेट ट्रांसफर हुआ है फोर्थ मॉलिक्यूल के ऊपर, वेट ट्रांसफर, ठीक है। तो टेंशन की डायरेक्शन तो अपवर्ड ही रहने वाली है, याद रखना। पर एक पॉइंट पे, ठीक है, जो हर पॉइंट पे जो टेंशन होती है और जो वेट ट्रांसफर हुआ होता है उस पॉइंट पे, वो बिल्कुल सेम होते हैं और उनकी नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। सो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, वी शैल राइट दिस कंसेप्ट। सो mg will get transferred, okay, to each and every molecule, of string, okay। सो लाइक सेम भी, फोर्थ के पास mg चला गया, उसको नीचे खींच रहा है। पर जो थर्ड है, थर्ड और फोर्थ में स्पेस क्रिएट होगी खींचने की वजह से। अब थर्ड क्या है, इनमें पहले ही मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी,
तो अब उस स्पेस को फिर करने के पहले तो वो इकट्ठे थे, अब थोड़ा सा स्पेस आ गया नीचे खींचने की वजह से, फिर वो ऊपर खींचने, थर्ड फोर्थ को पुल करेगा, यही क्या होगी, ये क्या होगी, टेंशन। ये क्या है, वेट ट्रांसफर्ड ऑन फोर्थ मॉलिक्यूल। ठीक है, सो mg विल गेट ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस mg will be balanced by the torque. Okay, torque एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, mg will get transferred to फोर्थ मॉलिक्यूल, लिख लो, लाइक डायग्राम बना के दिखा देना, फोर्थ मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल लाइक दिस, सॉरी, okay, mg will get transferred to fourth molecule of string, suppose, but third molecule of string वो पुल करेगा किसको, फोर्थ मॉलिक्यूल को, विल पुल फोर्थ मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है और अपने बीच की स्पेस को वो क्या करना चाहती है, नॉर्मल। जो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगी उसको नॉर्मल करना चाहती है, इसलिए वो ऊपर को जाने की, फिर वापस आने की कोशिश करेंगे। सो फोर्थ मॉलिक्यूल इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग intermolecular force of attraction वो एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल which will try to bring them to their normal position. Okay, you can also write one line here more. mg will get transferred to fourth molecule, okay, of string, and fourth molecule will be pulled in the downward direction. fourth molecule को pull किया जाएगा in downward direction, ठीक है, और उसकी वजह से जो स्पेस होगी थर्ड और फोर्थ में वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड स्पेस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ओके, but third molecule of string will pull fourth molecule in the upward direction because a strong intermolecular force of attraction exist करती है between third and fourth molecule। तो जो ट्राई करेगी, which will try to decrease the gap, to decrease the space between third and fourth molecule and try to bring it to a normal position, and try to bring fourth molecule at normal position, fourth molecule at a normal position। सो अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी एक फोर्थ को एक पॉइंट मान लो ए, मतलब ए पॉइंट पे एक पॉइंट है स्ट्रिंग का, उसको नीचे पुल किया जा रहा है mg से, और अपवर्ड पुल किया जा रहा है टेंशन से, वो भी किसके बराबर होती है, mg। इसलिए ना तो ए पॉइंट जो रस्से का होता है वो ना नीचे जाता ना ऊपर, वहीं पे खड़ा रहता है। सो हर पॉइंट पे ये हो रहा है, ठीक है। सो डायरेक्शन क्या है टेंशन की, एक ऊपर है एक नीचे है, वेट तो यहाँ है, वेट तो नीचे है। सो वेट ये mg हर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाता है, पहले फोर्थ में जाता है, फिर थर्ड में जाता है, फिर सेकंड में जाता है, फिर फर्स्ट में जाता है। तो ऐसे दिखेगा आपको कंसेप्ट। अब बाहर से देखोगे तो आप ऐसे दिखेगा, mg नीचे एक्ट कर रहा है, टॉर्क यहाँ पे कहाँ लग रही है, ऊपर, टेंशन ऊपर को लग रही है,
पर यहाँ पे टेंशन कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। ठीक है, सो टेंशन इज बाई डायरेक्शनल। ये टेंशन नहीं है, ये क्या है, जो पहला मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल उस पर mg ट्रांसफ़र हो गया और वो उसको नीचे खींच रहा है, तो वो उसको हमने इससे शो किया, तो इज इक्वल टू mg। ओके, तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, थर्ड और फोर्थ में गैप इंक्रीज हो गया है और थर्ड फोर्थ को ऊपर खींच रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्थ थर्ड को नीचे खींच रहा था, किससे, mg से। तो अब थर्ड फोर्थ को ऊपर खींच रहा है किससे, एक टेंशन से, एक टेंशन से, ये वाली फोर्स जिसको हम शो करते हैं, इसका नाम भी क्या है, mg। सो टेंशन इज बाई डायरेक्शनल। ओके, लाइक दिस। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग टेंशन इज बाई डायरेक्शनल, ऐसा लिख लो, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग, रस्से के हर पॉइंट पे टेंशन इज बाई डायरेक्शनल। सो ये कहानी है जिसको समझ आ रही है, इट्स अ स्टोरी। ओके, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। कुछ नहीं है, अगर दूर से देखेंगे, कोई दूर से हमें देखे, कोई ऐसे, ठीक है, तो यहाँ कोई मान लो बकेट लटक रही है, बकेट का वेट नीचे को क्या है, mg। रस्से पे यहाँ पे टेंशन ऊपर होगी, यहाँ पे बिल्कुल साथ में बाल्टी के टेंशन ऊपर होगी। अगर यहाँ रिगिड सपोर्ट के बिल्कुल पास देखोगे तो टेंशन कहाँ होगी, नीचे होगी। तो ये मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए क्यों ऐसा आ रहा है। क्यों, जब ये वेट फोर्थ को खींच रहा है तो स्पेस बढ़ रही है, अब स्पेस बढ़ने की वजह से थर्ड कहता है नहीं जाना, मेरे पास ही रहे, तो वो ऊपर को लग रही है टेंशन। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, अभी mg पहले फोर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर थर्ड को हो जाएगा, फिर सेकंड को हो जाएगा, ऐसे ही पहले मॉलिक्यूल को हो जाएगा। पहले मॉलिक्यूल को भी mg किधर खींचने की कोशिश करेगा, नीचे, तो ये टेंशन उसकी है। सो दिस इज द कंसेप्ट। Okay, so this is a concept. If you don't get this point of tension, you can call me on that day, on the same day you have listened this concept, not on a gain day, on the same day. Okay, so this is a tension concept. So tension is, what is this tension? It's a means a reaction force developed in the string, developed in the string, which is balancing the weight of the body that is tied to a string. You can say like that, it's a reaction force developed in the string which is balancing the weight of the body that is tied to a string, and at every point of a string its direction is, हर पॉइंट पे, चाहे कोई भी स्ट्रिंग का वो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, चाहे बी ले लो, एक उसके ऊपर, एक के ऊपर, एक ऊपर को भी लग रही है, एक नीचे को भी लग रही है, बी के ऊपर ऊपर को भी लग रही है, नीचे को भी लग रही है, सी के ऊपर ऊपर को भी लग रही है, नीचे। इसलिए चाहे वेट हमने हैंग कर दिया है, ए वहीं पे रहता है, ए कहाँ रहता है, वहीं पे रहता है, बी भी कहाँ रहता है, वहीं पे रहता है। सिर्फ अगर नीचे को लगती तो बी यहाँ नहीं रहना था, बी ने फिर यहाँ आ जाना था, यहाँ आ जाना था बी ने। तो ये ऐसी कोई फोर्स है जो बैलेंस करके बैठी है बी को, सी पे रहती है तो सी भी वहीं पे रहता है, हिलता है। ये वेट और ये वेट, mg, सो mg। दो कहानियाँ याद करो, बस ये कहानी अगर समझ आ गई किसी को तो वो पकड़ गया इस बात को। थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल एंड फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसको mg पकड़ रहा था, mg नीचे को खींच रहा था। थर्ड और फोर्थ अटैच थे, जब थर्ड और फोर्थ अटैच थे, फोर्थ अगर mg के नीचे जा रहा तो थर्ड भी mg से नीचे जा रहा था, mg यहाँ ट्रांसफर हो गया। अगर थर्ड और सेकंड अटैच थे, थर्ड mg से नीचे जा रहा तो सेकंड भी किससे नीचे जा रहा था, mg से। तो mg हर जगह ट्रांसफ़र होगा। जब हर जगह ट्रांसफ़र हो गया, mg यहाँ भी आ गया जब, तो थर्ड और फोर्थ में स्पेस बढ़ गई, पर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने क्या करना है, इन दोनों को पास लाने की कोशिश करनी है। एक अपवर्ड फोर्स भी लगेगी, एक अपवर्ड फोर्स भी लगेगी, एक अपवर्ड फोर्स भी लगेगी, ऐसे करके mg क्या उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, ये वाला, ये भी नीचे लाने की कोशिश करेगा, ये भी नीचे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इसको ए पॉइंट ले लें, इसको बी पॉइंट ले लें, इसको सी पॉइंट ले लें, ठीक है, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए को अगर पॉइंट ले लें, ए को नीचे खींचा जा रहा है mg से और थर्ड ऊपर को खींच रहा है, ऐसे करके। ठीक है, किस फोर्स से, हम कह सकते हैं टेंशन से। तो टेंशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होती है, mg। टेंशन mg के इक्वल क्यों होती है, रस्से में क्या डेवलप हुई है, टेंशन, वेट ये है। अगर ये 100 है फोर्स,
तो ये इसको भी 100 ही होगा, तभी तो ना तो बॉक्स ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, टेंशन भी mg के बराबर ही होती है। ठीक है, ये लाइक दिस। सो बी पॉइंट पे भी देख लो सिनेरियो क्या है। बी पॉइंट पे बी को एक तो mg नीचे से खींच रहा है और ऊपर को कौन सी फोर्स होती है, टेंशन, इसके टेंशन लग रही है mg ऐसे। ये क्या है, वेट जो ट्रांसफ़र हुआ है। सो ये, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो अगला दिस यूनिट इज़ ओवर, लॉस ऑफ मोशन इज़ ओवर। वी विल नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 6, this is work, energy and power. So this is our next chapter. So first of all we will tackle with the term what is work. Suppose in a ground a ruler is there. Okay, a ruler is there, or suppose like this, yeah, there is a almirah in your room, almirah, and you are applying a, sorry, yeah, not like this. Okay, this is a very good example. Suppose a car is standing here and your father asks to push the car. What will you do? You will push the car in this direction. Always you push the car in this direction, like this. Okay, and car moves in this direction, displacement. You are applying force on the car and the displacement is taking place in the car. Okay, so what you are doing according to science, you are doing according to physics, you are doing the work. Okay, so what is this work? Work, it is the product, it is the product of force. Okay, it is the product of force and displacement in the direction of force. What is this displacement in the direction of force? This you have to understand. Displacement in the direction of force, very important term. Now see, भी displacement इस डायरेक्शन में हो रही है, वो कहते भाई वर्क क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, पर हमारे केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। हमें डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेनी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो अब बदली नहीं जा सकती, अब कार तो ऐसी ही जाएगी, कार को उड़ा तो सकते नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं भाई जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये वाली, इसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में कितना है, डिस्प्लेसमेंट वाली, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा। ठीक है, थीटा। सो कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही है और कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही है। इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, सपोज फोर्स एफ है, तो इस डायरेक्शन में लग रही है एफ कॉस थीटा। ये हमने किया था, अगर रिजल्टेंट इधर होता है और वो ए कंपोनेंट के साथ थीटा बनाता है तो इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट दैट इज आर साइन थीटा। ओके, सो व्हाट इज दिस, एफ कॉस थीटा, मतलब फोर्स, डिस्प्लेसमेंट सपोज एस होगी, डिस्प्लेसमेंट एस होगी, और फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितनी लग रही है, एफ कॉस थीटा। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिस इज अब बनती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, और यू कैन से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स है और इस फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है, एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, एस। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, फोर्स कितनी है, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज दिस, एफ एस कॉस थीटा। अब रिमेंबर आपको पता है ये होता था ए बी कॉस थीटा,
is equals to A dot B dot product. So ये क्या बन जाएगा, F dot S is equals to work done. और आपको पता है A dot B जो होता था वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता था, स्केलर दो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता था स्केलर प्रोडक्ट आता, ये भी वेक्टर होता था, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, बट जो आंसर आता था वो स्केलर आता था। तो वर्क डन क्या आएगी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो डेफिनेशन से ये बनाया हमने। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। नाउ डिलीट दिस, इट विल बी एफ डॉट एस। So this is the concept of work we are doing. Okay. So work is equals to fs cos theta or f dot s. So this is the expression for work done. So remember this expression. Okay. Work is equals to f dot s or fs cos theta, remember this, and theta is the angle between force and displacement, remember this thing. Okay, now we will do the types of work done. How means what types of work done is there. So first type of work done is positive work done. Okay, suppose we are applying force in this direction. Okay, and displacement is also taking place in this direction, displacement s. So what is the angle between them? It is also long x-axis, it is also long x-axis. So the angle between them is 0 degree. Okay, put here as 0 degree, case number 1. When force and displacement are in the same direction, case number 1. So work done is equals to f s cos 0. Value of cos 0 is 1, fs. So it's a positive work done. It's a case of positive work done. Okay, like the engine of a car is applying force in this direction and displacement is also taking place in this direction. The engine of a car is doing a positive work done, like this. So second case, negative work done. Okay, that means like this, you have thrown a ball in the upward direction. Okay, that means displacement is taking place in this direction. You have thrown a ball, but the gravity is pulling the ball in this direction, mg. Okay, force F is equals to mg. Due to gravitational force, it's acting in this direction. So what is the angle between this displacement? Displacment up, force down, 180 degree. So theta is equals to 180 degree. When force and displacement are opposite to each other, then theta is equal to 180 degree and the value of work done is equals to fs cos 180, and the value of cos 180 is minus 1 into fs. So this is negative work done. Negative. When force and displacement, case number 2, when force and displacement they are acting opposite to each other, then the theta is 180 and the value of work is negative. It's a negative work done. So third case is zero work done. What is zero work done? So third case is zero work done. Okay. What is this zero work done? Suppose you know what is coolie. Coolie is lifting a load on his head and load weight is acting in the downward direction. This is a coolie. Okay, and load is on his head, and load is applying weight mg, but load is not coming downward because coolie is applying a equal and opposite normal reaction. That means coolie is applying a normal reaction equal to mg. That's why load remains at the same location.
Okay. So weight is a kind of force like this. So force is acting in the downward direction, weight, okay, like this. Oh no, not like this. Okay, like this. So I think force is acting in the upward direction. This is the applying, Cooley is applying this normal direction. So Cooley force is like this, okay. But Cooley is walking on the platform in this direction. So this is the Cooley walking on this direction. So displacement is in this direction. Cooley is walking on the floor of a platform. So what is the angle between force and displacement? Now calculate the work. Cooley is lifting a load on his head and moving on the platform. Then this condition is there. The angle between force and displacement is 90 degree. Fs cos 90 degree. Cos 90 degree is 0 into Fs. So work done is 0. This is the concept of work done. Okay. 0 work done. So what is the unit of this work done? Remember this. So work done depends on force S cos theta. Theta is no unit, you know that. Cos theta is trigonometry ratios, they are not having unit. This is having a unit of meter and force is Newton. So Newton multiply meter is equals to joule. Work unit is joule. Same energy unit is having a joule. So SI unit of work is joule. And you calculate the dimensions of work done. You have to calculate. How you will calculate work done? You know work done is equals to force into displacement. Put the value of force, mass into acceleration into displacement. So put the value of acceleration, mass into velocity upon time into displacement. So what is the value of this velocity? Velocity is displacement upon time. एक टाइम पहले से ही था नीचे, ये वेलोसिटी आ गया. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम पहले. अब पुट कर दो मास का m, डिस्प्लेसमेंट का l, इस डिस्प्लेसमेंट का भी l और इसका t स्क्वायर. सो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m l स्क्वायर t माइनस 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. I've told you the work done is this one, it's a scalar quantity. Remember this thing, work done is a scalar quantity. Okay. So this is a work done. Topic name is work energy and power energy. So suppose here is a body. Okay, body has energy. What you can say like that? If a body is having energy, that means energy is the capacity to do work. Capacity to do work. If a body has energy, it can do the work. Work means it can apply the force on a body and there will be some displacement. This is the definition of work done. If a body has some energy, then it has the capacity to do work. Capacity to do work means it has the authority or it has ability to apply force on a body and there will be some displacement. This is the concept of work done, energy. Okay. So make another new topic, work energy theorem. This is new topic and important. Work energy theorem. That means work is somehow related to this energy. And now we know what is energy. Energy is the capacity to do work. Suppose a car is moving. Okay, car is moving on the road. It is having some velocity u. Okay, you have applied some force on it. Okay, and it has covered some displacement. Suppose s displacement. And after applying force, force means mass into acceleration, and due to acceleration its velocity, final velocity has increased to v. So you all means write this concept.
A car is moving on the road with the initial velocity u. Write this in theory. We have applied force on the car and it has covered a displacement s. Due to the force, its final velocity reaches v. Like this you write. Okay. According to definition of work. According to definition of work, we know that the force is also applied in this direction and displacement is in this direction. Theta is 0. So work done definition is Fs cos theta. Put the value of theta. Fs cos 0. So what will be the work done? Work done is F into S, like this. Okay. So you know that, you know the second concept. This is first concept, no? Now second concept is if a body is having some initial velocity u, okay, its final velocity is v, or it has covered some distance s, you apply the equation of motion. Apply the equation of motion. V square minus u square is equals to 2a into s. This one is okay, 2as. And acceleration we don't know भी कितनी आ रही है. Our target is to calculate s, displacement. Displacement की value put करो, क्या बनती है? V square minus u square upon 2a. Okay. This is 1, this is 2. Okay, put value of 2 in 1. Put the value. What will be the value? F is equals to F into S. S value is V square minus U square upon 2a. Okay. So you now this is third equation. We know, आगे ये लिख दो, we know according to Newton's second law F is equals to ma. और फोर्थ की वैल्यू थर्ड में डाल दो. पुट वैल्यू ऑफ फोर्थ इन थर्ड. Okay, so W is equals to mass into acceleration into V square minus U square upon 2 into A. A will be cancelled with A. Okay. So what remains? Work is equals to, this is 1 by 2. What remains? mv square minus mu square. 1 by 2 कॉमन, mv square minus mu square. इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ mv square minus हाफ mu square इक्वल टू, हमें पता है भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. ये वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी इनिशियल भी हो सकती है, वेलोसिटी फाइनल भी हो सकती है. अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल काइनेटिक, अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, फाइनल वेलोसिटी लिखी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. दिस वी नो दैट. तो व्हाट इज दिस? दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी is equals to work done. Okay. अभी कार मूव कर रही थी, मान लो हमने कहा हमारी कार मूव कर रही और कार ने s डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली. पहले कार की वेलोसिटी u थी, फिर v हो गया. हमने यही कहा था ना,
जब मूव कर रही थी उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो थी, कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, मान लो वो 100 थी, 100 जूल। ओके, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी भी होगी, क्यों होगी, क्योंकि वर्क डन किया उसके ऊपर, तो इसलिए होगी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। मान लो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी 200 जूल। अब पुट करो, 200 ये होगी, 100 ये होगी, 200 माइनस 100 इज 100, तो वर्क डन कितना आया, 100। तो वर्क डन कौन बता रहा है, वर्क डन बता रहा है जितना बदलाव एनर्जी में आ रहा है। मान लो पहले 100 थी, बदलाव कितना आया, 100 आया, 100 पहले थी तो 100 ही आया ना बदलाव। तो जितना बदलाव काइनेटिक एनर्जी में आएगा वही वर्क डन होगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है भाई वर्क जो हमने किया वो किस काम आया, वो एनर्जी का बदलाव लाने में काम आया, और जितना एनर्जी का बदलाव आया उतना ही वर्क डन हुआ, उतना ही वर्क डन हुआ। जो हम बॉडी पे वर्क डन कर रहे हैं ना, तो वो वर्क डन क्या कर रहा है, उस बॉडी के एनर्जी में चेंज ला रहा है, जितना चेंज आ रहा है उतना ही वर्क डन है। ठीक है, सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज दिस, वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी एंड एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क। सो ये क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन लिख लो, वर्क डन ऑन अ बॉडी, जैसे हमने कार पे किया, वर्क डन ऑन अ बॉडी। ओके, व्हाट इज दिस, it will be equals to, is equal to difference in potential energy, difference in is equal to difference in potential energy is equal to difference in potential energy, sorry, in kinetic energy, difference in kinetic energy between two points, जैसे इस दो पॉइंट्स के बीच में, between two points. So this is work energy theorem definition. Okay. जैसे हमने वर्क किया, इस बॉडी पे वर्क किया, क्या किया, वर्क किया बॉडी के ऊपर, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क होता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जब वो बॉडी वर्क करती है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जैसे आप हो, मैंने आपको खिला पिला दिया, आप बॉडी हो, अब भागो, तो आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, बॉडी वर्क कर रही है। अगर बॉडी वर्क कर रही है तो आप कितना टाइम भागोगे, आधा घंटा भागोगे, उसके बाद थक जाओगे, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, क्या हो रही है, कंज्यूम, तो आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब बॉडी वर्क डन करती है तो उसकी एनर्जी कम होती है, जब बॉडी पे वर्क होता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस ऑन अ बॉडी, व्हेन वर्क इज डन बाय द बॉडी its energy decreases. These are 2 main points. So with this we are going to there is one topic I must give you explanation. So enough, today is enough. So hope you enjoyed today's lecture. Thank you, have a nice day.